हेलो गाइस, वेलकम टू एस इंग्लिश अकेडमी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਂਸਰਸ ਫਾइंड आउट करना। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਨਰੀ ਪਰਕਿੰਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਫਕੋਰਸ। ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਾਈਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਾਈਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਸ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਫਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखांगे। तो अपने पहले क्वेश्चन से मूव होने हैं। अपना क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ते बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन दे विच की है द माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज परकिंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। हुण आपां नूं एक नाम दिता होया है माइकल फैराडे। एक ही फर्स्ट पर्सन है जिन्हें रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करना पछाणना किहदी एबिलिटी परकिंस जिहड़ा आपां नूं नाम दिता होया सीगा ओहदी एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री भी ओहदी एबिलिटी नूं पहली बार उस बंदे ने पछाणिया माइकल फैराडे। एक क्वेश्चन आप होर पढ़ लेने हैं कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। सिर्फ आप दो क्वेश्चन पढ़ के चलांगे कि बाय चांस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नॉट गिवन तो कम से कम आपको दूजे की वर्डिंग याद रहे तो आप उसनूं सॉल्व आउट कर सके। तो दूसरा क्वेश्चन है माइकल फैराडे सुजैसटेड भी उन्हें सुजैसट किया परकिंस नूं शुड एनरोल्ड इन रॉयल कॉलेज ऑफ कैमिस्ट्री। हुण मतलब एडवाइस की गल की अपना जो वर्ब दी हुई है शुड के हिसाब नाल दी हुई है कि उन्हें सुजैसट किया कि रॉयल कॉलेज कैमिस्ट्री के उन्हें परकिंस नूं एडमिशन लेना चाहिए, एनरोल करना चाहिए। तो कीवर्ड अपना हैगा रॉयल कॉलेज ऑफ कैमिस्ट्री ते आपां लभना की है एक सुजैशन भी उन्हें सुजैशन दिता है या नहीं। दो क्वेश्चन पढ़ ले बहुत है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना बिफोर परकिंस डिस्कवरी कहता भी परकिंस की डिस्कवरी तो पहला विद वट ग्रुप केड़े ग्रुप इन द सोसाइटी वाज कलर पॉपुलर पर्पल एसोसीएटेड। मतलब जो कलर सीगा पर्पल वो एसोसीएटेड केड़े ग्रुप ऑफ सोसाइटी मतलब आपको सोसाइटी मैंबरस बारे पूछा गया भी केड़े ग्रुप नाल ही जो पर्पल कलर सी वो एसोसीएटेड। बस आ तीन क्वेश्चन पढ़ ले आप अपने पैराग्राफ से चलते हैं। पैराग्राफ देखो की कहता है विलियम हैनरी परकिन वाज बोर्न ऑन मार्च 12 1838 in London, England. As a boy, Perkins' curiosity prompted early interest in the arts, sciences, photography, and engineering. But it was a chance stumbling upon a rundown yet functional laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's enthusiasm for chemistry. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। हाँ कैमिस्ट्री बारे उन्हें गल जरूर की है कि ਉਹਦੇ जो एंथुसियाजम है सॉलिडिफाई होया ਉਹਦੇ यंग फादर ग्रैंडफादर करके। ਅੱਗੇ है एज अ स्टूडेंट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टूडेंट की गल की कि ਉਹਨਾਂ ने ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पढ़ लेना चाहिए कि एज अ स्टूडेंट ਉਹਦੀ एबिलिटी किने पछाणी
एज अ स्टूडेंट पूछे माइकल फैराडे वॉज द फर्स्ट परसन। हुण आपां नूं कीवर्ड माइकल फैराडे है किसी ने भी रिकोगनाइज की वो देखांगे। पहला माइकल फैराडे बारे जो गल की आपां उसनूं देखनी। एज अ स्टूडेंट एट द सिटी ऑफ लंडन स्कूल परकिन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर परसीव्ड। हाँ जी, ओहदे टैलेंट ते ओहदे डिवोशन नूं किसने परसीव किया? बाय हिज टीचर थॉमस हॉल who encouraged him to attend a series of lecture, जिन्हें ਉਹਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ attend ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ series of lecture given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਛਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ability। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ perceive ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ abilities। His talent and the devotion to the subject were perceived by his teacher थॉमस हॉल। किने कीतियां? थॉमस हॉल ने, ना कि माइकल फैराडे ने। ये तो एक साइंटिस्ट है जो लैक्चर्स दिंदा, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਫਾਲਸ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। परकिन employed August William Hoffman as his assistant। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? परकिन ने employ ਕੀਤਾ, employ करना ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਨਾ August Wilhelm Hoffman, ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ as his assistant। ਹੁਣ assistant ਰੱਖਿਆ परकिन ने August William Hoffman। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ परकिन डिस्कवरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी अपना कीवर्ड है। तो माइंड च रखना आप वो वाला कीवर्ड भी पढ़ते पढ़ते। Those speeches fired the young chemist enthusiasm further and he later went to attend Royal College of Chemistry। देखो कीवर्ड अपना आ गया Royal College of Chemistry which he succeeded in entering 1853 at the age of 50। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ बंद होया, पर ध्यान रखना भी अपना ये पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है अपना एग्जैक्ट आंसर लभण वास्ते। दो स्पीचेस फायर्ड द यंग केमिस्ट, मतलब वो स्पीच सुन के जेड़ा वो लेक्चर सी माइकल फैराडे ओहदी स्पीच सुन के वो एंथुसियास्ट होया, मतलब जोश च आ गया। ते ही लेटर वेंट टू अटेंड रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इत्थे कोई शुड आख्या उन्हें मस्ट आख्या कोई उन्होंने सुजैशन दिता हो भी उन्हें सुजैसट किया माइकल फैराडे ने भी तुसी रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री दे विच जाओ ते उत्थे एडमिशन लो। उन्हें तो बस अटेंड किया, किहदे सुजैशन ते कीता किहदे ते नहीं उहदे बारे आपां नूं कोई गल नहीं कीती। तां इसदा आंसर तो की लगेगा जिवें माइकल फैराडे सुजैसटेड उन्हें गल ही नहीं की भी उन्हें कोई सुजैशन दिता या नहीं दिता। तां इसदा आंसर की आएगा? नॉट गिवन। नेक्स्ट है आप पढ़ चुके हैं हॉफमैन विलियम असिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ परकिंस एनरोलमेंट द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वाज हेडेड बाय नोटेड जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट विलियम हॉफमैन। देखो अपन कीवर्ड मिल गया अपना ऑगस्ट विलियम हॉफमैन। कहना भी जिस टाइम परकिन ने एनरोल किया सी उस टाइम केमिस्ट्री जो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वाज हेडेड बाय नोटेड जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट विलियम हॉफमैन। परकिन्स साइंटिफिक गिफ्ट सून कॉट हॉफमैनस अटेंशन। कहना भी परकिन जेड़ा सी ओदियां साइंटिफिक गिफ्ट मतलब ओदा टैलेंट सी वो कॉट किया गया किदे द्वारा? हॉफमैनस अटेंशन, मतलब ओदा ध्यान गया उस ते हॉफमैन दा। विदिन 2 years ही बिकेम हॉफमैनस यंगेस्ट असिस्टेंट। वो की बन गया? हॉफमैन दा यंगेस्ट असिस्टेंट बन गया। पर अपने क्वेश्चन च की आख्या? परकिन ने इंप्लॉय किया, परकिन इंप्लॉयड ऑगस्ट विलियम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। तो ये तो उल्टी गल करती कि परकिन ने इंप्लॉय किया ऑगस्ट विलियम हॉफमैन आपका असिस्टेंट, पर उत्थे गल की है कि ऑगस्ट विलियम हॉफमैन ने उहदे टैलेंट नूं पछाणिया परकिन दे ते उसनूं आपका असिस्टेंट यंगेस्ट असिस्टेंट बना लिया भी वो सब तो छोटा असिस्टेंट बन गया। तो भी की हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं परकिन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। कहता भी देखो परकिन वो स्टिल यंग हजे छोटा ही सीगा, मतलब यंग मतलब छोटा ही ऐसे मन्या जाऊगा। वैन ही मेड द डिस्कवरी जदों उन्हें डिस्कवरी की
ਕਾਦੀ एंड मेड हिम रिच एंड फेमस, जिहदे करके वो फेमस ते रिच होया। फिर मतलब ਉਹਦੀ ਏਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਫॉल्स ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਏਜ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। आगे देखो द ट्रीज फ्रॉम विच कुनैन इज डिराइव्ड, हुण ट्री की गल आ गई, कुनैन जिथों कुनैन डिराइव की जाती है मतलब ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका, कीवर्ड है साउथ अमेरिका ते ओनली, ध्यान रखना है ओनली भी ये सिर्फ साउथ अमेरिका दे विच ही ग्रो हुंदा है जिहड़ा पेड़ तो कुनैन लगदी है, कुनैन डिराइव की जाती है। चलो नैक्सट पढ़ते हैं। Not long after the Perkins made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੇਮ ਤੇ ਫॉर्चून। ਇਹਨੇ कहता भी परकिन मेड not long after भी ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯੰਗੈਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯੰਗੈਸਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ not long after ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਕਿਨ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਤੇ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ट्रू आ जाएगा क्योंकि उन्हें क्या हाले भी वो छोटा ही सी यंग ही सीगा जदों उन्हें आह डिस्कवरी की जिहदे करके उन्हें नेम ते फेम मिलिया, ये की हो गया ट्रू हो गया इस करके। नेक्स्ट देखते हैं एट द सेम टाइम कुनैन, अपना कीवर्ड मिल गया अपन कुनैन वाज द ओनली वायबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलारिया। कहना ओनली होना किहदे वास्ते लग्या, ट्री वास्ते नहीं लग्या क्योंकि अपना क्वेश्चन का पूछ रहा है भी ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਜੋ ਕੁਨੈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਨੈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਗਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਨੈਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਾਇਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਮਲਾਰੀਆ, ਦ ਡਰਗ ਇਜ਼ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਬਾਗ। कहना भी ड्रग कितों डिराइव किया जाता है उसके बाग तो, बाग होंगे सक जो पंजाबी च आप वर्ड कर यूज करते हैं, उसकी उपरली लेयर जो किसी भी पेड़ की होंगी है। ऑफ द सिनकोना ट्री, हुण ट्री का नाम दिता भी किहड़ा ट्री है, सिनकोना ट्री है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का नेटिव जरूर है भी उत्थे उगदा है। एंड बाय 1856 डिमांड फॉर ड्रग वाज सरपासिंग द अवेलेबल सप्लाई, कहना भी 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, मतलब ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਵੈਨ ਹੋਫਮੈਨ ਮੇਡ ਸਮ ਪਾਸਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ desirability of a synthetic substitute for quinine, it was unsurprising that the star people was moved to take up the challenge। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਏ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਦਾ, ਉਹਨੇ सिर्फ आए जरूर आख्या भी साउथ अमेरिका का ही नेटिव है, पर ऐ किते नहीं आख्या भी होर किते लभ ही नहीं सकदा, सिर्फ साउथ अमेरिका च ही मिलता। तो जो ओनली वर्ड है ये ओनली, ये करके सारा का सारा जो ऐ लिखता, जे ये ओनली ना हुंदा मान लो द ट्रीज फ्रॉम विच कुनैन इज ड्राइव ग्रो इन साउथ अमेरिका, भी साउथ अमेरिका च होंदा फिर तो आप लगा देंगे ट्रू, तो जे इन्होंने ऐ कह दिता होंदा भी किते होर भी उगदा तो फिर आप ला देंगे फॉल्स, पर जो ओनली वर्ड लाता है मतलब कला ये साउथ अमेरिका के ही उगदा, तो उसके बारे कुछ मैंशन नहीं किया भी किसी होर भी उगदा या नहीं, कल साउथ अमेरिका च उगदा है, की हो जाऊगा नॉट गिवन। नैक्सट देखते हैं परकिन होप, हुण एक तरह का पैनिक नहीं होना क्योंकि अपन हाले तक 8वें क्वेश्चन का कोई भी कीवर्ड नहीं मिला, हो सकता अपन अगे मिल जाए तो टेंशन लैने की कोई लोड़ नहीं। नैक्सट देखते हैं परकिन होप टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग फ्रॉम ए कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट, परकिन ने होप की कि मैन्युफैक्चर करूगा एक ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन इत्थे, फ्रॉम ए कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट, कहना भी कोल तार दे वेस्ट प्रोडक्ट तो उन्होंने होप सी एक मैं एक दवाई बना लूँ। फिर अगला क्वेश्चन भी पढ़ लें, परकिन वॉज इंस्पायर्ड, कहना भी वो इंस्पायर्ड होया बाय द डिस्कवरीज ऑफ फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर, कहना भी जो लुइस पास्चर से उन्हें जो डिस्कवरी की तो इंस्पायर्ड हुए। नैक्सट देखते हैं आप इतों तो ही पढ़ लिया, अपन कोई कीवर्ड नहीं मिले इतों। आप ड्यूरिंग हिज वैक्सीनेशन इन 1856 परकिन स्पेंट हिज टाइम इन लैबोरेटरी ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ फैमिलीज हाउस, ही वाज अटेम्प्टिंग टू मैन्युफैक्चर कुनैन फ्रॉम एनिलिन। एनिलिन है कोई
in an inexpensive and readily available coal tar waste product। हाँ जी, उन्हें की किया, एक coal tar waste product अपना कीवर्ड मिल गया। वो की कर रहा सी अटैम्प्ट बना कर रहा सी अटैम्प्ट तां ही करते हैं जो कोई होप होंगी है भी वो मैन्युफैक्चर कर लूगा। कुनैन कुनैन की होगी ओदी ड्रग दवाई फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन वो प्रोडक्ट है जिहड़ा कित्थों निकलदा है, कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट है। तां इहदा आंसर की आ जाएगा, ट्रू। नैक्सट अपना ध्यान है लुइस पास्चर अपना कीवर्ड है उत्थे देखते हैं। Despite his best efforts, however, he did not end up with a name। हालांकि उन्हें पूरे एफर्ट लाए कहना भी पर उदों कुनैन नहीं बन सकी। Instead, he produced a mysterious dark sludge। Luckily, Perkins' scientific training and nature prompted him to investigate the substance further, incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process। He finally produced a deep purple solution। उन्हें एक deep purple solution बना लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਪਲ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਦ ਟਰੁਥ of the famous scientist Louis Pasteur's word, chance favors only the prepared mind, Perkins saw the potential of his unexpected find। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਕਿਨ ਵਾਸ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਬਾय द डिस्कवरी ऑफ ਫੇਮਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਦ ਟਰੁਥ ਆਫ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੁਥ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। नेक्स्ट देखते हैं, historical textile dyes were made from such natural sources as plant and animal excretion। Some of these such as glandular muscles of mucus of snails were difficult to obtain and outrageous expensive। Indeed, the purple color extracted from a snail was once so costly that in society at the time only rich could afford it। ਕੱਲੇ ਰਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਜ਼ ਟੈਂਡਡ ਟੂ ਬੀ ਮਡੀ ਇਨ ਹਿਊ ਐਂਡ ਫੇਡ ਕੁਇਕਲੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੈਟ ਪਰਕਿੰਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जो पर्पल कलर सी वो एसोसीएटेड सी। तो केड़ी सोसाइटी, रिच सोसाइटी। द रिच कह सकते हैं, द रिच कह दो क्योंकि टू वर्ड्स है तो द भी ना लगा दो। जे दो ना दिते होंगे फिर आप कला रिच लगा सकते। नैक्सट, द पोटेंशियल डिड परकिन इमीडिएटली अंडरस्टैंड। कहना भी केड़ियां पोटेंशियल सी, व्हाट पोटेंशियल डिड द परकिन इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट हिज न्यू डाई हैड। ओदी नवी डाई दे विच की पोटेंशियल्स हैगियां जेडे ओनू इमीडिएटली समझ आ गए। तां नैक्सट देखदे हां, परकिंस क्विकली ग्रैस्प्ड। क्विकली उन्हें की ग्रैस्प किया दैट हिज पर्पल कलर सॉल्यूशन कुड बी यूज्ड टू कलर फैब्रिक। ओदा जो ग्रैस्प कर लिया कि सोल्यूशन के भी इनू यूज किया जा सकता है कलर फैब्रिक। हुण आपां इत्थे जे आपां पोटेंशियल की गल करिए, वट पोटेंशियल कलर फैब्रिक हो सकता है इहदा आंसर, क्योंकि जो आपां नूं कीवर्ड मिले पर मैनूं इहदे अकॉर्डिंग जो टेंस के अकॉर्डिंग ये सही नहीं लग रहा। फिर आपां अगे पढ़ते हैं इसमें। ग्रैस्प की गल की क्विकली, दस मेकिंग इन द वर्ड फर्स्ट सिंथेटिक डाई। तो वह की है वर्ड फर्स्ट सिंथेटिक डाई बनी। रियलाइजिंग द इंपोर्टेंस, आ भी ठीक है क्योंकि उन्हें इंपोर्टेंस रियलाइज किया ऑफ हिज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू होंगे कोई भी चीज़ नवी लैके आने तो ब्रेक थ्रू बन जाती है। ही लॉस्ट नो टाइम इन पेटेंटिंग इट। उन्होंने आदि ब्रेक थ्रू का पता लग्या, उन्हें उन्होंने पेटेंट कराने टाइम नहीं लाया। बट परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग of all Perkins' reaction to his find was
the nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities। हाँ जी, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ instant word, nearly instant recognition। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਇਕਲੀ ਗ੍ਰੈਸਪ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਪਲ ਫੈਬਰਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਬਰਿਕ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਲਰ ਫੈਬਰਿਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਈ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ possibilities। Oh my God। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रह गया, पढ़ लिए। What was the name? Key name she finally used to refer to the first color Perkin invented। फर्स्ट कलर ਜਿਹੜਾ परकिन ने इन्वेंट किया सी ਉਹਦਾ नाम की रखा गया फाइनली। ये ध्यान रखियो, फाइनली हो सकता है कि बहुत सारे नाम रखे गए हों भी इनिशियली ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। फिर वट वॉज द नेम, फिर अगे भी दिता नेम ऑफ द परसन परकिन कंसल्टेड, भी उन्हें कंसल्ट किया, सुजैशन लिया बिफोर सैटिंग अप हिज ओन डाई वर्क्स। उन्हें आपदी ही डाई नू वर्क करन तो पहला किस नाल कंसल्ट किया। हाँ जी, परकिन ओरिजिनली नेम द डाई ट्रायन पर्पल। पहला उन्हें ओरिजिनली नाम देखो, मैं क्या सीगा कि पहला उन्हें इनिशियली ओरिजिनली उन्हें नाम की दिता ट्रायन पर्पल, बट इट लेटर बिकम कॉमनली नोन एज मोव। ते बाद दे विच ये लेटर की कॉमनली नोन की बन गया, ਇਹਦਾ ਨਾਮ मोव रखा गया फ्रॉम द फ्रेंच फॉर द प्लांट यूज्ड टू मेक कलर वायलेट। किहदे नाम ते रखा गया ਉਹ ਨਾਮ भी दसदा भी फ्रेंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੂਵ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ मैं आंसर लगा देनी है लिखने की बजाय 11। ये अपना आंसर हो गया 11 मोव। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं इन दैट कंट्री इन सॉरी वट वॉज द नेम ऑफ परसन। हम आप परसन लभते हैं, आगे दिता होया है। एक चीज़ होर ध्यान रखियो, आप स्पीड अप करने वास्ते की कर सकते हैं। हुण आपां नूं पता है कि अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन रह गए जिहदे च सिर्फ आपां नूं नाम कीवर्ड लभणे हैं ते ना उत्थे पहुंचो ते आंसर दे दो। ये भी एक तरीका है अपनी रीडिंग नूं स्पीड अप करन दा। हुण मान लो मैं किते भी इस नूं पढ़दी हां, जिथे मैनूं नाम मिल गया मैं उत्थे रुकूंगी, जिथे भी मैनूं नाम मिल गया मैं उत्थे रुकूंगी ताकि मैनूं ईजिली आंसर मिल जाए। जिवें मैनूं इत्थे रॉबर्ट फुलर मिल गया, ठीक है, तो मैं ये वाली लाइन ही पढ़ूंगी। ही आस्क्ड एडवाइस। हुण आज तो आपको कीवर्ड भी मिल गया भी उन्हें एडवाइस मंगी है, उन्हें पूछे सुजैशन, कंसल्टेड वर्ड लाया। स्कॉटिश डाई वर्क्स ऑनर रॉबर्ट फुलर। स्कॉटिश डाई द वर्क्स द ओनर सी, वर्क्स का मतलब ऐसे वर्कशॉप है, ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਫੁਲਰ। हु assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the color remained fast। कहता भी वुड नॉट फेड, अगर कहता भी ये बहुत फायदेमंद होगी जी फेड नहीं होंदा रंग। एंड द कोस्ट वॉज रिलेटिवली लो, ते पैसे भी ये घट ने। तो किहदे नाल कंसल्ट किया, आपां नूं ओबवियसली आंसर मिल गया कि रॉबर्ट फुलर है जिहदे नाल उन्हें कंसल्ट किया। नैक्सट क्वेश्चन उन्हें क्या है, इन वट कंट्री, किहड़ी कंट्री दे विच डिड परकिन्स न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल। पहली बार जो फैशनेबल होया किहड़ी कंट्री। हुण आपां कंट्री का नाम लभना है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सौखे हो जाते हैं। जो आप कंट्री का नाम ही लभना तो आप इनू फटाफट पढ़ांगे तो आप कंट्री के नाम से पहुंचांगे। हु assured him the आप पढ़ चुके सी होफमैन। So over the first objection of his mentor Hoffman, he left college to give birth to the modern chemical industry।
with the help of his father and brother. Perkins set up a factory not far from London. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਲੰਡਨ ਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚੀਪ ਐਂਡ ਪਲੈਂਟੀਫੁਲ ਕੋਲਤਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਨੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵਰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚੀਪ ਪਲੈਂਟੀਫੁਲ ਕੋਲਤਾਰ that was almost unlimited byproduct of London gas street lighting. The dye works began producing the world's first synthetic dyed material in 1857. The company received a commercial boost from the Empress Engine of France when she decided the new color flattered her. Very soon, mauve was necessary shade for all the fashionable ladies. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਲੇਡੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੋਵ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ, क्योंकि कोई नाम दिता होया तो आंसर की आ गया फ्रांस। 12 क्वेश्चन का आंसर आ जाऊगा फ्रांस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच डिजीज, केड़ी डिजीज है इज नाउ बीइंग टारगेटेड बाय रिसर्चर्स यूजिंग सिंथेटिक डाइज। कहता भी सिंथेटिक डाइज नाल केड़ी डिजीज है ਉਹਨੂੰ टारगेट मतलब क्योर करना, और ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। टारगेटेड कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ मीनिंग क्लीयर नहीं ਹੁੰਦਾ जे अपन पर अपन ओवरऑल क्लीयर होना चाहिए जो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्लीयर हो जाता है कि ਇਹਦਾ मीनिंग है, क्योंकि टारगेट का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है। एम करना तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड के पीछे नहीं पैना। तो नेक्स्ट देखो आगे पढ़ते हैं। विक्टोरिया ऑल्सो अपीयर्ड इन पब्लिक वेयरिंग ए मॉव गाउन thus making it all the rage in England as well। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ The dye was bold and fast and the public clamored for more. Perkin went back to the drawing board. Although Perkins' fame was achieved and fortune assured by his first discovery, the chemist continued his research. Among other dyes he developed and introduced were aniline red, aniline black, and in the 1860s Perkins green. It is important to note that Perkins' synthetic dye discoveries had outcomes far beyond the merely decorative. The dyes also became vital to medical research in many ways. ਹੁਣ medical research ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। For instance, they were used to stain previously invisible microbes and bacteria, allowing researchers to identify Bacilli or tuberculosis, cholera, and anthrax. Artificial dyes continue to play a crucial role today, and in what would have been particularly pleasing to Perkin, their current use in the research of vaccine against malaria। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀਆਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ 13। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर तुहानू फिर भी समझ नहीं आया तुसीं मैनू कमेंट करके दस सकदे हो। थैंक यू।